टोपियां ने 4 बंदे पढ़ो اللهم ربي اللهم ربي اللهم ربي اللهم ربي ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولا نسمع له وقال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ربي محمد شفيع 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 اللهم ربي اللهم ربي وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وادخل الجنة أجمعين
صوفیہ مہربانی فرما کر صفوں کے اندر آ جائیں. چند صفا جو یہ سارے بندے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص. سبحان الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ میرے ساتھ عربی جملے کے اندر دو شعر پڑھیں گے. بلغ العلابی ہی بلغ العلابی کشف الدجى بجماله أسنى جميع صلوا عليه وعليه بلغ العلا. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بالا کشف الدجى بجماله أسنى جميع خصاله. صلوا عليه وعليه بلغ سب ملک کے ملک کے والا سے دعا شر پہ چلیں گے. نابل بھائی محمد صاحب سے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے پڑھ شکرانہ حمد رب تے پڑھ شکرانہ، پڑھ شکرانہ حمد رب تے مرداں دی گل کھولاں، قدر کیڑا تے ہستی کیڑی، کیڑے منہ تھی بولاں، تے تر گئے سانو کلیوں چھڈ کے، او ٹر گئے سانو کلیاں چھڈ کے، سٹ گئے او ڈونگیاں فکراں، پاٹی لیرے پرانی وانگوں، ٹنگ گئے او سنگ ککراں، تے ٹر جاون دا ایک قسم خدا دی، او ٹر جاون دا قسم خدا دی، نہیں افسوس ایک قطرہ، ریسی داغے جدائیاں والا، او دل میرے وچ وکھرا۔ تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب۔ آگے تشریف لائیں حضرات محترم، یہ محترم چاچا عبدالرشید صاحب، اللہ کریم ان کی آنے والی منظروں کو آسانی کے اندر تبدیل عطا فرمائے۔ یہ نہایت ہی ایک نمازی آدمی تھے اور ملنسار آدمی تھے، اللہ کریم نے ان کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ آنے والی منظروں کو آسانی کے اندر تبدیل فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب عزیز صاحب۔ تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر عبدالعطیہ صاحب۔ بھیجو پیچھے بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ اہل خانہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ یہ ہمارے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب جو کاروبار کرتے رہے ہیں اور اس حوالہ سے چھوٹا موٹا لین دین بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو کافی انہوں نے بیماری دیکھی ہے، اس بیماری کے دوران لین دین مکمل ہی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو ان کے بچے موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے تقاضا کر کے لین دین کے معاملات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اعتبار سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اس کے دل کو گراں گزرتی ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اس کے حوالہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان دوسرے کو معاف ہی کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے حوالہ سے کوئی ایسی رنجش یا دل میں کوئی ایسی بات ہو تو ہم سب کی طرف سے گزارش ہے کہ وہ معاف کر دیں، چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا وقت ہے کہ ہم سب پہ آنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نماز جنازہ میں جب ویسے بھی بندہ، میں ایک یہ نہیں کہ کوئی بڑا کام ہے، لیکن میں نے کسی سے تھوڑے سے پیسے لینے تھے، تو
जनाजा हो गया तो मैं जनाजे में पहुंचने नहीं, बल्कि जब मैंने सुना कि वो फोत हो गया तो थोड़े से पैसे थे मैंने माफ़ कर दिए, क्योंकि जब माफ़ कर रहे जितना जल्दी काम कोई करेगा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में जल्दी किया करो। तो इस तरह सामीन इकराम, अगर किसी के लेन देन है वो भी, और अगर किसी की कोई दिल आज़ारी हुई है इनकी वजह से, तो चूँकि इन्होंने एक बीमारी देखी है, हम उस हवाले से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमारी जो इन्होंने दुनिया में रहते हुए तकलीफ़ उठाई है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता करते हैं, और अल्लाह करीम इनको अजर अता फरमाए और ये सीधे जन्नत में चले जाए। सामीन इकराम, चूँकि मुख्तसर वक्त है और इस वक्त के अंदर चंद बातें करनी हैं, और इसलिए कि ये याद दहानी होती है, मुझसे ज़्यादा इल्म वाले यहाँ मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा बात करने वाले मौजूद हैं, समझदार मौजूद हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कोई बात जो है वो याद नहीं रहती, हम आपको याद करवाते हैं। तो सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दीन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, आपकी वसातत से हम तक पहुँचाया है, और वो दीन शरीयत भी उसी को कहते हैं, दीन भी कहते हैं, और उसे मुख्तलिफ नाम भी देते हैं, लेकिन बात एक ही है कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से हम तक पहुँचा है। अब उस पर अमल करना जो है वो ज़रूरी है। सामीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आप तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, एक वफ्द आया, लोग आते थे, दीन की बातें सीखते थे, कोई कलमा पढ़ता था, कोई पैगाम लेकर दुनिया में चला जाता, अपने इलाकों से आते वापस चले जाते, और आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी, एक वफ्द जो है वो आया है दीन की तालीम हासिल करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने सारा दीन, ये बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी 5 चीज़ें जो हैं अल्लाह के नबी ने हमें जो दीन का सतून जिन्हें करार दिया है, वो क्या है कि उसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी यानी अरकान इस्लाम और हलाल और हराम, ये दर्स देने के बाद फरमाया कि जाओ, तो उन्होंने कहा, उनमें से एक ऐसा बंदा था, जो बात बंदे होते हैं जो मुंह पे बात कर देते हैं और खुली बात करते हैं, इसलिए कि बाज़ बंदे अंदर कोई बात रख नहीं सकते, सच्ची बात वो सामने कर देते हैं। एक बंदे ने कहा, या रसूलल्लाह, हम ना इससे कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। ये ज़रा गौर करने वाली बात है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, फरमाया ना इससे कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। तो जब वो जाने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबा देख लो, अगर इन्होंने जो वादा किया है, जो बात की है, जो ऐद किया है, अगर इस पे कायम रहे तो ये जन्नती है। तो पता चला ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन पहुंचाया है, उसको अगर हम उस पे अमल करके ये ज़िंदगी गुजार ले तो कामयाबी जो है हो जाती है, और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा, जितना भी गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, ये तो आपने सुना हुआ है ना। लेकिन याद रखें एक बात, कि ज़्यादा किसी एक चीज़ को करेंगे, दूसरी तरफ से कम करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि एक बंदा जो है वो फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ता, फ़र्ज नमाज छोड़ देता है, वक्त मुकर्रर पे नमाज नहीं पढ़ता, उसको तर्क कर देता है, लेकिन वो नवाफिल पढ़ता है, सहरी के वक्त भी उठता है और वो नफल भी बहुत पढ़ता है। जब तक फ़र्ज नमाज का पूरा हिसाब नहीं देगा, कितने नवाफिल भी वो पढ़ लेगा, उसका छुटकारा नहीं होगा, वो कामयाब नहीं होगा। एक बंदा ज़कात अदा नहीं करता, अब वो ज़कात तो नहीं देता, लेकिन वो बहुत सदका खैरात करता है, बात नहीं बनेगी, इसलिए कि ज़कात फ़र्ज है। जब तक ज़कात अदा नहीं करेगा तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़राइज़ जो रखे हैं उनको पूरा करना जो है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जो एक नमाज जानबूझकर फर्ज छोड़ देता है और जानबूझकर छोड़ता है तो कुफर तक वो पहुंच जाता है। इतनी बड़ी वईद आई है। और इसी तरीके से बहुत काम वो करता है, बहुत देगे पकाता है, लेकिन वो फ़राइज़ को पूरा नहीं करता तो कल क़यामत के दिन फिर वो उससे पूछा जाएगा।
एहतसाब होगा, और ये दुनिया का एहतसाब नहीं है। वो एहतसाब कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर वो एहतसाब हुआ तो फिर किसी की जान नहीं बचेगी। एदिलु व अक़रबु लित्तक़वा, बराबर हिसाब होगा, अदल होगा, और अदल जो है मुत्तकीन की सिफात में से एक सिफत है। और इसी तरह सामईन किराम, एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा, एक बात यहाँ मैं आज आपके गोशगुजार कर देता हूँ, क्योंकि बात बातें जो है वो सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसी दवाई, देसी दवाई, वो कहते हैं कि बहुत कड़वी होती है, और अगर वो हलक से नीचे उतर जाए तो कई किस्म की पीड़े और दर्द और कई किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इस तरह सामईन किराम, सच्ची और कड़वी बात जो है वो सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अब एक गरीब आदमी है, एक सफेदपोश आदमी है, एक मजलूम आदमी है, एक मिस्कीन आदमी है, गरीब आदमी है, वो फोत हो जाता है। अब मोहल्ले वाले, दर्द दिल रखने वाले, दूसरे ऐसे जिनके अंदर ये जरूर बात आ जाती है कि हमारा मुसलमान भाई था, अल मुस्लिम मिरातुल मुस्लिम, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, और एक मुसलमान भाई की वो मदद करते हैं इसलिए कि उसके बच्चे जो हैं वो यतीम हैं और उनकी परवरिश हो जाए। यह नुक्ता सुनने वाली बात है। वो इसलिए मदद करते हैं कि इनके बच्चे जो यतीम रह गए हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, इन पे थोड़ा सा जो माल हम देंगे, इनके अय्याम ठीक गुजर जाएंगे, इनकी तालीम का बंदोबस्त हो जाएगा, या फिर इनके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो इसलिए मदद करते हैं। और हम में से जो बड़ा होता है, चूँकि यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में जाएगा। याद रखें, जो यतीम मस्कीन बच्चों की जो अपने वालिदैन उनके चले गए, उनकी जो परवरिश करने वाला है वो जन्नती है। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं वो करता हूँ जो आम तौर पर होता है, सारे नहीं करते ऐसा। हम ये करते हैं कि वो माल जो होता है वो 40 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को मकरूज कर देते हैं। हम मकरूज कर देते हैं मुख्तलिफ हवालों से, लोगों को बुलाकर, दावतें देकर, सुबह शाम खर्च करके लोगों ने उस मिस्कीन के अय्याम को गुजारने के लिए, उसकी मुश्किलात को कम करने के लिए वो माल दिया था। ये देना भी चाहिए गरीब और मस्कीन की। और फिर उसका वो माल जो उसके वालिदैन या वालिद तरका के तौर पर छोड़ गया है, वो माल मौजूद था। हत्ता कि ये हुआ कि कर्ज को अदा करने के लिए वो जमीन को या सासू को बेचना पड़ा। अब जब वो जवानी को पहुंचा तो उसका माल जो है वो खत्म हो गया था। अब ऐसा करने वाला जहन्नमी होगा, इसलिए कि उसने सबसे बड़ा जुल्म ये है कि यतीम के माल को ना हक खाना। और वो जो ऐसा करता है, चूंकि वो सरप्रस्त होता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो दुनिया में तो करके जाएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन वो यतीम उसके सर पे होंगे, उनका एहतसाब वो करेगा अल्लाह तबारक व तआला। और एहतसाब पे पूरा उतरना उस वक्त जो है वो नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि उसको उसके बदले में जहन्नम में डाला जाएगा। तो सामईन किराम, याद रखें, जो यतीम का माल है उसको सर्फ करने के लिए, उसको खर्च करने के लिए 1000 बार सोचें कि क्या मैं लोगों को खुश करने के लिए, क्या मैं रसूमात को पूरा करने के लिए ये मस्कीन का माल, यतीम का माल खर्च कर सकता हूँ कि नहीं। अगर नहीं है, अपनी तरफ से जितना भी करेगा वो गुड़ डालने वाली बात है, लेकिन यतीम के माल में से ना हक जो है वो सर्फ नहीं करेगा, इसलिए कि वो उसकी अमानत उसके पास है। उस अमानत में ख़यानत मत करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। हज़रात मोहतरम, आगे काफ़ी जगह है, मेहरबानी फरमाइए रास्ता थोड़ा सा ताकि आगे आते हैं। मोहतरम मकाम जनाब प्रोफेसर नबरा सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस मुबारका जिसमें फ़िकी मसाइल मौजूद हैं, जिनका अमल से चोली दामन का ताल्लुक़ है, मैं वो अर्ज़ की देता हूँ। तवज्जो का मुतकादी रहूँगा।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मेरे अजीज़ों के वालिद मोहतरम का जनाजा है, इन्होंने अपने बाप की बीमारी के दौरानिए में औलाद होने का हक अदा करने की कोशिश की है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन और अगर कहीं कमज़ोरी रह गई है तो वो माफ़ी अता फरमाए। आमीन। बाप की शान, सुबह के वक़्त बाप की पेशानी को प्यार से देखने वाले को आज एक एक नगाह के सिले में अजय मबरूर का ऐसा आज जो कबूल अल्लाह की बारगाह में इतना अजर अल्लाह अता करते हैं, ये बाप की शानें हैं। हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लिल मोमिन अलल मोमिन सित्तो खिसाल, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक हैं। यहूदो इदा मरदा, जब वो बीमार हो तो ये उसकी इयादत करे। जो आदमी सुबह के वक़्त किसी बीमार को जाकर देखता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और जो शाम के वक़्त किसी बीमार को जाकर देखे, सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं। ये बीमार को देखने की फजीलत हज़रात। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अज़रतुमुल मरीज़ा अविल मय्यता फ़क़ूलू खैरन फ़इन्नल मलाइकता युमिनूना अला मा तक़ूलून। जब आप बीमार के पास जाओ या मैयत के पास जाओ, अच्छी बात कहो, अच्छा जुमला ज़ुबान से निकालो, इसलिए कि उस वक़्त जो आप बात करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते वो आपकी उस बात पर आमीन कहते हैं। तो हज़रात, इससे मालूम ये हो गया कि जाने वाले बंदे की अगर कोई कमज़ोरी भी दुनिया में हो गई है तो जाने के वक़्त उस पर आप पर्दा डालें और उसकी अच्छाई और उसकी नेकी जो आपके नॉलेज में है उसकी तशहीर करें। ये उसके लिए भी नफ़ा बख्श है और ये आपके लिए भी फ़ायदा मंद है। आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो मर जाए तो ये उसके जनाजे में शरीक हो। ये मैयत का हक है और जिंदू का फ़र्ज है कि उसके नमाज जनाजा में वो शिरकत करें। और जनाजे में शिरकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी जनाजा पढ़ता है, अल्लाह करीम उसको एक किरात का अजर व सवाब अता करते हैं। और एक किरात का वज़न ओहद पहाड़ के वज़न के बराबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। जनाजे के बाद दफन के मामलात में जो लोग शिरकत करते हैं, उनको अल्लाह करीम 2 किरात अजर व सवाब अता करते हैं। एक ज़िमनन मसला याद कर दूं कि जनाजा उठाकर ये मियाना रवि से चलना चाहिए हज़रात, तेज़ कदमों से जनाजा उठाकर नहीं चलना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि साहिब जनाजा को हमारी तेज़ रफ्तारी से तकलीफ़ ना हो, अजियत ना हो। जिस तरह के ज़िंदा बंदे को हम अजियत से बचाते हैं, मैयत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए हज़रात, आखिरी बात, मैंने हदीस में 6 हुकूक हैं, दो बयान किए, वक्त साथ नहीं दे रहा, लेकिन एक बात कह के वो भी ज़रूरी मसला, वो ये कि क्यों हुक्म है कि बाप को बेटा गुस्ल दे, बेटे को बाप गुस्ल दे, भाई को भाई गुस्ल दे, ताकि वो उस वक़्त जो गुस्ल देंगे अपने बेटा बाप को देगा तो नरमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप की बॉडी को वो तकलीफ़ से बचाने की कोशिश करेगा। इसमें ये बहुत बड़ी लाजिक है और इसका अजर और सवाब भी बहुत है। आखिरी बात के दफन के बाद मैयत के सराहने सूरह बकरा का पहला रुकू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक और पाँव की जानब सूरह बकरा के आखिरी रुकू की पहली आयत से आगे आमन रसूल से लेकर आखिर तक पढ़ना, ये उसके लिए बहुत नफ़ा बख्श है। और इतनी देर वो रसा में से किसी को कब्र पर मौजूद रहना चाहिए कि जितनी देर एक ऊँट ज़बह करके गोश्त तकसीम करने में
लगता है ताकि मैयत को फ़ायदा पहुँचता है वहाँ उसके बरस आगे खड़े होने की वजह से अल्लाह करीम इन मसाइल को सुनने के साथ साथ पल्ले बांध कर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे जगह काफ़ी है, मेहरबानी फरमाए आगे आ जाए। खाली सब सीधी करें। अच्छा जगह बनाए तुम थोड़े पीछे हो ना, अगले 5-10 बंदे थोड़े पीछे हो कदों कदों। रुकी रोक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह समद अल्लाह समद आमीन। थोड़ा सा मिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आमीन या रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक सूरह फातिहा की सूरह इखलास अल्लाह कबूल फरमाई। इस्लाम की सरबलंदी के लिए अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। आमीन। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से जनाब आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों में आमीन या रब्बिल आलमीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरक़ मग़रिब जुनूब शुमाल के अंदर जितने तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम कलमा तैयबा पढ़ने वाले वालिद ईमान दुनिया से जज में सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन। अल्लाह ख़ास बिलख़ुसूस मोहतरम बुज़ुर्ग मरैया सभी चाचा जान दुनिया से पर्दा फरमा चुका, अल्लाह इनकी दराजात को बुलंदी अता फरमा। आमीन। जिनके भर के छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह जो बीमार हैं परेशान हैं सबसे निजात अता फरमा। आमीन। जो पूरी दुनिया में बीमारी में मुब्तला हैं बिलखुसूस मुसलमानों की खैर अता फरमा। आमीन। अल्लाह जो दूर से करीब से आके नमाज जनाजा अदा की है हर कदम के बदले अल्लाह बेपनाह नेकियां अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे सगायर गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह उलमा का साया हमारे सर बता हयात क़यामत तक अल्लाह कायम और दायम फरमा। अल्लाह बिलखुसूस हम सब की तरफ से ये दुआ क़िबला बुज़ुर्गों के हक़ में कबूल फरमा। जब कब्र में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। करम की बहार अता फरमा। मकाम इल्लियीन में जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम
सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला सदके कलमे वाले तो सिर सदके कलमे वाले तो सारी उम्मत दे रखवाले तो सारी उम्मत दे रखवाले तो नूरी ताजा तख्ता वाले तो बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला सोने रब दा नाम पुकार मियां सोने रब दा नाम पुकार मियां पाक नबी को वार मियां जिंद पाक नबी को वार मियां गफरत नहीं दरकार मियां बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला ये कलमा नूर नूर मियां ये कलमा नूर नूर मियां हर मुश्किल करता नूर मियां हर मुश्किल करता नूर मियां नो पड़या दा सरूर मियां बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा या मोहम्मद सरवर सल्ले अला जदों मिट्टी देखी जाने जाना जदों मिट्टी देख जाने जाना उड़ जानी
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ